अच्छा, कैसे है उधर? जी। वेदर कैसा है? वेदर? वेदर बहुत अच्छा है प्रभु जी, इधर तो विंटर चल रही है अभी। अच्छा, विंटर चल रहा है। ओके। हाँ, इट्स जस्ट अपोजिट इन द ग्लोब ना, सो ओ, ये क्या जब उल्टा हमारा चलता समर होता है, इधर है? विंटर है। उल्टा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ऑस्ट्रेलिया में जी ऐसे जी। होगा ना? ऑस्ट्रेलिया में भी विंटर चल रहा होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ में हाँ। बिलो द जी, इक्वेटर। हम्म। बिलो द इक्वेटर, यस। ओहो, अच्छा, हमारा जब समर है विंटर है, हमारा विंटर है उनका समर है। उनका समर है। Just see how in the same planet there are two weathers. Yeah, Just right. amazing, The amazing. air is very clean here, but air is very clean and हम्म, बहुत अच्छा वेदर है। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बढ़िया। तो माता जी ज्वाइन हो रही है? अभी तो ज्वाइन किया था, आई डोंट नो, जस्ट ड्रॉप, लेट मी चेक प्रभु। ओके, चेक करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सरप्राइजिंगली पता नहीं फोन जा नहीं रहा है और फोन उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं प्रॉब्लम हुई लगता अच्छा, है। अभी तो ज्वाइन किया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम शुरू तो करें, तो लेट नहीं होना है। ऑलरेडी हम थोड़ा जी लेट हो। जी अच्छा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भूमिका जी, वेलकम। With prayers to Prabhupada and Lord Krishna. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ठीक है, फाइन। सो टुडे विल डिस्कस टू मोर वर्सेस। तो अभी हमने पिछले सेशंस में ईशोपनिषद is one of the important Upanishads, which is Upanishad basically means the Vedic conclusion given in a very crisp manner, right? Upanishad basically means the conclusions which is going to bring you closer to Krishna, absolute truth, Supreme Lord. Like Upanayan, Upanayan they say. Upanayan means by that process of Brahman initiation, Brahman Diksha, the person is brought closer to Supreme Lord. Like that, Upanishads are the conclusion of the Vedas, which is bringing us closer to Supreme Lord. That portion of the scripture of the scriptures, Vedic scriptures, bring us close to Krishna. Right? So this is sort of a conclusion, just like Prabhupada says in today's verse also. It says, Bhagavad Gita is known as Gita Upanishad sometimes because it is the cream of all Upanishads. सभी उपनिषदों का सार सर्वस्व है, right? So whatever is there, in Bhagavad Gita, other in different Upanishads, complete essence is there in Bhagavad Gita, other Upanishads. So likewise, you get references of whatever is mentioned in this 18 verses in Bhagavad Gita. So Prabhupada has been giving references. If you see in the last chapter, last verse also, verse number 1, Prabhupada gave many references from Bhagavad Gita, right?
chapter 7, 4 and 5th verse, right? Then he gave reference of 3rd chapter 13th verse, है ना? Or 9th chapter 26th verse, ऐसे. So it's basically the references, like in Bhagavad Gita also Prabhupada gives many references again of Upanishads. Like that, now all Upanishads, all Shastras basically speak the same language, same principles. That's the understanding. तो उपनिषद का, ईशोपनिषद का जो शुरुआत होता है इन्वोकेशन मंत्र से, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, राइट? तो the it is mentioned that Lord is perfectly complete. It is perfect and complete, which means that there is no such imperfections like we have with our existence. The 4 imperfections, what you see, Lord doesn't have that. And completeness meaning any number of things emanate from Krishna, either as the living entities or creations, he'll remain always complete. This formula Prabhupada gives. 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1. In Bhagavad Gita also Prabhupada says this. So he is a source of many complete units, right? So this is what it means, complete. And whatever comes also is complete. All of us are actually complete in ourselves. Not that there is some shortage or there is some incompleteness in our in our existence. All incompleteness, Prabhupada क्या बोलते हैं? All incompleteness is because of our incomplete understanding of complete knowledge. A very nicely phrased statement. All forms of incompleteness is experienced due to incomplete knowledge of complete whole. Okay, and because of our own ignorance or illusion, we are not able to understand the completeness of Krishna. So once we engage ourselves in Krishna's devotional service, slowly that sense of completeness with regard to Krishna's existence and everything will be revealed to us. Right? Fine. So in the first verse, it was mentioned that we have to accept only the quota given to us. Lord is supreme proprietor. Krishna explains in Bhagavad Gita again, Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvalok Maheshwaram. See, again, Upanishad, and this is Bhagavad Gita and Upanishad verses are same. इस तरीके से हम भागवतम में भी देखेंगे, बहुत सारे प्रेयर्स हैं जिसमें ये जो ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोका है, फर्स्ट मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम, same like this only it is there in Bhagavatam, many verses, many prayers, especially that prayer of Gajendra. You can see one of the prayers is like this: you are the Lord of everything, right? The supreme proprietor of everything, whether whatever animate, inanimate, visible, invisible, anything in this material world is owned and controlled by Krishna. That's the understanding. When you say the supreme proprietor, proprietor means what? It's like somebody is having land. So he is owning it, he is enjoying it, and is controlling it. That is the meaning of proprietor. Proprietor of a company means what? He is owning that company, he is controlling it, and also is enjoying the benefits or results from the company. That's the understanding. So, Lord is the supreme proprietor, or भगवान यही उपनिषद में ये बोल रहे हैं कि Lord is supreme proprietor, and all of us are only given what we actually. One second, power is off. I'll put the emergency light. प्रभु जी, वो उधर भी वाईफाई चल नहीं रहा है शायद उनका, और ना तो डेटा चल रहा है, कुछ एयरटेल में इशू हुआ है प्रभु जी, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बात हुआ प्रभु जी, डायरेक्ट फोन लगाया मैंने तो बोल रहे कि कुछ भी चल नहीं रहा है, कोई ना तो मोबाइल डेटा चल रहा है ना वाईफाई चल रहा है, कुछ एयरटेल के ये दोनों सारे फोन तो प्रॉब्लम हो गई है लगता है। हम तो सोच रहे कि हाँ में तो ठीक है, चले जी हमारा तो स्थिति है, चलना है, ठीक है। जैसे ज्वाइन होंगे अगर आ जाता है वो डेटा, ऐसे होता है, वेरी वल्नरेबल। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा पता नहीं चलता। होंगे रिकॉर्ड तो हो रहा है सेशन।
जी जी। तो फर्स्ट श्लोका में हम देख रहे हैं कि भगवान अ, परमेश्वर में सुप्रीम प्रोपराइटर, सबका स्वामी है, मालिक है। चीज हम देखते हैं नहीं दिख रहा है हमको, एनिमेट इनएनिमेट मीन्स जो पशु पक्षी और सभी तरीके के जो जो इधर पे अभिव्यक्ति का उनका स्वामी है, प्रभु है, वो नियंत्रण करते हैं। ईश्वरा, जैसे ईशावास्यम, ईशा मीन्स दिस वर्ड ईशा, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण, इस श्लोक का ईशा, दिस वर्ड ईशा मीन्स प्रोपराइटर, कंट्रोलर, बोथ। Controller, and it means, see, every word of lot of proper meanings. Okay, तो हर जीवात्मा को अपने उसे समझना है कि मेरा कोटा क्या है, उसको स्वीकार करना है। एंक्रोच अपना अदर्स प्रॉपर्टी, सिंपल प्रिंसिपल है ना। So this understanding of excuse me, God proprietor is whatever you see, whatever, anything and everything, not that only is Lord of something. No, he's Lord of everybody. In fact, Krishna says, I am the father of every living. Right? He's having control of every act. That is Krishna. So living entity also, Krishna has given some specific quota, enjoy and experience the material world. तो हमारा कोटा क्या है, उसके हिसाब से हमें काम करना है. So it means this verse is telling that you have to acknowledge Krishna's proprietorship. भगवान कृष्ण का जो स्वामित्व है उसे हमें स्वीकार करना है. और दूसरा बात है, we have the responsibility in human life. Right? We cannot simply do anything and everything. Right? When you say quota, this is your quota, assigned quota. Whole problem in the material world is we don't understand what is our limitation. हमारा क्या डोमाइन है वो पता नहीं हमें, हम उसे समझते नहीं है. Whatever in the history, so many things have happened. इस कंट्री ने इसको अटैक किया, अभी जो get into the root, it's violating this first of all the different things in the material world reflects that first verse. People are not recognizing Krishna better, है ना. भगवान ही सबका स्वामी है, वही प्रभु है, वो नहीं मानते हैं. दूसरा बात है जो है अज्ञान है. हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वो पता नहीं है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम in anything, whatever problems we are seeing in the material world right now. If this is realized, then done. There is a lot of happiness, peace in the world. वो जो 5th chapter भगवत गीता का जो श्लोका है ना, peace formula, is based on this only. The enjoyer of everything, Krishna says. Any yajna, any activities, bhoktaram yajna tapasam, sarvaloka maheshwaram, proprietor of everything, suhridam sarva bhutanam, I am the friend of everybody. Right? So the same verse in a different way it is being explained there. Okay, now next verse number 2, mantra 2. Mantra 2, kurvaneveha karma जिजीविषे चथाम समाह एवं त्वयि न कर्म लिप्यते नरे. तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं, कैसे हमें जीवन चलाना इस भौतिक संसार में. तो वर्स नंबर 1 में, मंत्रा 1 में यूनिवर्सल पिक्चर दिया है. ये पूरा संसार में जो देख रहे हैं इसका स्वामी कौन है और हमें क्या करना है. हमारा जो व्हाट इज माय bearing in this whole system, that was being told. Universal picture and what is my specific situation in this whole picture. Where am I? है ना. Second verse में, तो as a living entity I am active. What I should do? So very clearly it is mentioned here. Kurvan eveha. You should work in a way, the way it is being told in the mantra 1. क्या बोलते हैं,
हाँ, क्या बोला है मंत्र 1 में? लॉर्ड इज सुप्रीम प्रोप्राइटर, एवरी वी लिविंग इन सम कोटा। हमारा जो कोटा क्या है समझना है, उसके हिसाब से हमें जीवन चलाना है। तो इस तरीके से जीवन चलाना है बोल रहे हैं इस श्लोका में। इफ वन वर्क्स इन दिस वे as taught by mantra 1, one may aspire to live for hundreds of years. Right? अब translation देखिए, if he continuously goes on working in that way, which way? mantra 1 way, mantra 1 knowledge, background understanding, ठीक है? तो ऐसे कार्य करने से क्या होगा? एवं त्वयि नान्यथे अथो अस्ति, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, हाँ, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम ही है, और हरिनाम ही, और कुछ दूसरा मार्ग नहीं है। इन सेम वे इट्स न अन्यथा अस्ति। ये मंत्रा 1 का जो प्रिंसिपल है, इसे फॉलो करके जीवन चलाना ही एक ही मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ये बोल रहे हैं। इज द ओनली वे, राइट? अदरवाइज इफ यू डू anything else, what will happen? Karma lipyate, you will have karma bandhana, right? आपको कर्म बंधन में आना है तो बस आप वो मंत्रा 1 का जो प्रिंसिपल है नेग्लेक्ट करिए, आप फॉलो नहीं करना। मंत्रा 1 का जो प्रिंसिपल फॉलो करें, कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म का जो नियम है उस नहीं, you will be beyond the law of karma. Just see, in a short mantra, so much knowledge it is being given here. So basically यहाँ पे आश्रम धर्म का जो कर्तव्य है, इसे इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म था, है ना? वर्णाश्रम धर्म यानी कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 सोशल डिविजन्स, 4 स्पिरिचुअल डिविजन्स, 4 वर्ण, 4 आश्रम। भगवान क्या बोलते हैं? मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। समाज में गुण कर्म के आधार पर अलग अलग सामाजिक और आध्यात्मिक विभाजन हुआ है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब वर्णाश्रम में आप अपना कार्य करते जाएंगे, द होल वर्णाश्रम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल 1, ऑन मंत्रा 1 प्रिंसिपल, that everything is Lord is supreme proprietor, Lord is supreme master, he is the enjoyer, he is the controller. This understanding is very strong in everybody's mind. एक राजा भी अपना राज्य शासन कर रहा है तो वो सोचे कि मैं राजा नहीं हूं, भगवान राजा है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में इतने बड़े बड़े जो मंदिर है ना, वहां पे इतने मंदिरों में भगवान को राजा से और जो है मोर वे श्रेष्ठ तरीके से उनका सम्मान दिया जाता है, उनको उनका जो है सेवा किया जाता है, बिकॉज We lost you, Prabhuji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा। क्या अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। वो बीच में लॉस्ट हो गया। हाँ, करेक्ट, ओके। जी जी जी। एनीवे, नो प्रॉब्लम। भूमिका जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी शायद चल नहीं रहा लगता प्रभुजी। हाँ? इनका भी लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो मैं यही बोल रहा था कि वर्णाश्रम का जो आचरण में everybody was knowing who is the supreme proprietor, who is the supreme lord,
रिसेंटली में जो है दो दो दिन पहले मैं आई वाज हैड गॉन टू दिस प्लेस कॉल्ड करौली। यहाँ से वृंदावन से, मूल वृंदावन से काफी सारे जो ओरिजिनल डीटीज हैं, जैसे राधा मदन मोहन हो, राधा गोविंद जी हो, राधा गोपीनाथ जी हो, 5 सेट्स ऑफ डीटीज वर ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जब औरंगजेब ने अटैक किया तो उनको उधर ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि आउट ऑफ फियर, डिवोटीज आर हैविंग फियर, नो दे विल डिस्ट्रॉय टेंपल डीटीज बोल के उनको डर था। तो पहले जो मंदिर मिलता है आपको जयपुर जाने से पहले, एक जगह है करौली बोल के, तो वहां पे मदन मोहन जी का मंदिर है। तो एक राजा को जब वो ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, अटैक होने वाला था औरंगजेब से, उनको इंडिकेशन मिला कि ऐसे जो है मुसलमान लोग आएंगे तो मुझे इधर लेके आ जाओ। द किंग ऑफ दैट प्लेस ब्रॉट द लॉर्ड deities and he made a big palace for the lord, much more opulent than his own palace. See the understanding? Because they know Krishna is the supreme proprietor, I am only his representative. गीता में भी 10th चैप्टर में भगवान बोलते हैं, नारायणाम च नराधिपम, जो नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें नराधिपा यानी कि किंग इज, आई एम दैट किंग, यानी किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। जस्ट सी, सो दैट वे the Vedic principles are very very strong. They all know Krishna is supreme proprietor. उनका जो सेवा होता है बहुत बढ़िया होता है, उधर अच्छा हो रहा है। That way they all understand the Vedic principles. So the whole Vedic culture was that everybody has to perform their prescribed duties in a detached manner, offering everything to Krishna. That was the understanding, right? So this is going to purify one's consciousness. Yajnarthat karmano anyatra, right? So this is what Krishna said in the Bhagavad Gita, 3rd chapter का 13th verse में भगवान बोलते हैं, जब हमारा कार्य यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, जब हम सभी चीजें भगवान को अर्पण करके हमारा सेवा करेंगे भगवान को फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, तो हमारा कर्म बंधन नहीं होगा, भगवान बोलते हैं। देखिए यही बात इधर रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रभुपाद बिगिंस द पर्पस बाय सेइंग दैट हाउ हम इधर भौतिक संसार में बद्ध स्थिति में है। किसी को मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फिर भी हमें मृत्यु सामना करना है, उसको उसे 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 जो है वी हैव टू गेट ओवर विद दैट, वी हैव टू एक्सपीरियंस डेथ, राइट? वी हैव टू गो, वी वांट टू गो ऑन इन आवर लाइफ एज मच एज पॉसिबल। और यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है, मटेरियल वर्ल्ड का सिचुएशन क्या है, डेथ इज सर्टन एंड एवरीबॉडी हैज टू वर्क, है ना? हर जीवात्मा को यहाँ पे संघर्ष करना है, हार्ड स्ट्रगल। That's what the material world is. Everybody is working, and when they do material work for their own benefit, they get वो बंधन में आ जाते हैं, कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इस कर्म बंधन से बाहर निकलना है। तो प्रभुपाद इंट्रोड्यूस द वर्ड्स कर्म, अकर्म एंड विकर्म। तो शास्त्रों में कुछ विधि नियम दिए गए। प्रभु जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा जो है हाँ। स्वतंत्रता का जो मिसयूज करके, मिसयूजिंग ऑफ फ्रीडम, प्रभुपाद बोलते हैं इधर विकर्मा। विकर्मा मीन्स when actions that are performed to the misuse of one's freedom, है ना? भगवान ने फ्रीडम दिया है, बस if we misuse the freedom and do things in our own way, क्या होता है? We'll become again in bondage. कर्मा क्या होते हैं? Actions as given by Lord Krishna in Bhagavad Gita and scriptures. If you follow them, उससे क्या होता है? We'll be getting released from the cycle of birth and death. So 3 types of action is possible. जैसे इधर श्लोका का मंत्र का जो पहला पॉइंट यही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। हमें किस तरीके से कार्य करना है, हमें मनमर्जी नहीं करना है, हमें शास्त्रों का हिसाब से भी ठीक है, एक लेवल का जो है एडवांसमेंट होगा, बट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज व्हाट कृष्णा वांट्स, दैट्स द पॉइंट।
राइट, वी शुड डू ओनली व्हाट कृष्णा वांट्स। तो प्रभुपाद जी हमें भगवत गीता के 3rd चैप्टर से 9 to 16th वर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, हमें व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी वन इज सपोज्ड टू बी डूइंग, हमें नैष्कर्म्य करने का बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। दैट्स व्हाट दिस वर्स इज टेलिंग एक्चुअली। न कर्म लिप्यते मींस इट इज नैष्कर्म्य मींस विदाउट एनी रिएक्शन, व्हेन यू डू एक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन, ऐसे कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि बेसिकली when you do actions as per the scriptural directions as given by Krishna, and you realize Krishna in those actions as you move forward, it is called Naishkarmya, right? So when you do actions as given by Krishna, it will not give any bondage to you, no karma bandhana, and it will liberate you. Basically it is work in devotion basically, right? So उपनिषद में देखिए, इस ईशोपनिषद में डायरेक्टली डिवोशन नहीं बोल रहे हैं, whereas गीता में डायरेक्ट डिवोशन बोलते हैं भगवान। ये डिफरेंस है। Upanishadic verses are very philosophical, but it will not be directly, hinted out things what to do. You have to figure out things through proper analysis, through authorized, parampara. Whereas with Krishna, Bhagavad Gita, direct, Krishna directly hit कर रहे हैं points को। तो Prabhupada is taking the help of Bhagavad Gita and trying to explain to us हमें क्या करना है, क्या समझना है ना। तो basically Krishna is directly telling in Bhagavad Gita that you have to work in devotion, है ना। और कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, you'll be in bondage. That's what it means, यज्ञार्थात् कर्मणो नियतः लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यहाँ पे तो प्रिंसिपल 1, मंत्रा 1 का जो प्रिंसिपल पर काम करने के लिए बोल रहे हैं, बट हियर Prabhupada is recommending the purport, you work in devotion to Krishna, है ना, ये बात है। तो basically Prabhupada is saying we have to live a God-centered life. We have to transcend from karma bandhana, stage of karma bandhana, to कर्म योगा स्टेज। ये तो भगवान बोलते हैं गीता में। अभी कर्म बंधन में आ गए, इनकी जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो कर्म बंधन हो रहा है। इस कर्म बंधन से हमें कर्म योगा मीन्स एक्शंस विच इज गोइंग टू प्लीज कृष्णा, एक्शंस विच इज गोइंग टू सैटिस्फाई कृष्णा, ये कार्य हमें करना है, राइट। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन यू कीप कृष्णा इन द सेंटर, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बद्धात्मा जो है अभी तुरंत भक्ति कार्य लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी वो इंद्रिय तृप्ति करने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में, वेदर इट इज पर्सनल और एक्सटेंडेड, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, सोशलिज्म, समाज सेवा कार्य करना, राष्ट्रीयता करना, ये सब चीजों में हम लगे हुए हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब कर्म बंधन का अलग अलग पहलू हैं, द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ कर्म बंधना। तो उसको कर्म योग कैसे करें, when you keep Krishna in the center. See again Prabhupada is quoting from Bhagavad Gita 18th chapter 5th to 9th verse, उसमें ये बात प्रभुपाद जी समझाते हैं, है ना। तो जब भगवान ही वास्तव में भोक्ता है, उनका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, ये विषय पर, ये इस प्रिंसिपल जब हम कार्य करेंगे तो यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस, सेम थिंग लाइक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन we create Krishna in the center, right? It may be, say you're doing community service, humanitarian service, say Akshay Patra. What is that Akshay Patra? It is a Annadana Prasadam distribution. People want to do Annadana, some humanitarian social service, समाज सेवा करना चाहते हैं, परंतु उसमें भगवान नहीं है। हमने भगवान को उसमें इन्वॉल्व किया है। Whatever we are distributing, we are distributing prasadam. Just see, same activity has become spiritualized. ये बात जो है हमें रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में इस तरीके का जो भगवान के सेंटर में, भगवान के जो है उनको तृप्त करने का जो कार्य करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम ग्लाइडिंग टू हेल और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दूसरा मार्ग कुछ भी करेंगे ना तो यू विल बी इन बंधना, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ए हम्बल गॉड सेंटर्ड लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन
a colossal hoax of a life dedicated to godless altruism or socialism. इतने बड़े बड़े जो बातें बोलते हैं अभी दुनिया में, वो समाज सेवा करना है, वो रेड क्रॉस है, वो है ये, वो सारे बड़े बड़े जो बातें बोलते हैं, उसमें गॉड नहीं है, कृष्णा नहीं है सेंटर में. They're all doing it without Krishna. Just see how important it is. God-centered life is more valuable. भगवान को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर हमारा जो कार्य होता है वो सबसे बढ़िया है. Simply a colossal hoax of a life dedicated to godless altruism. बड़े बड़े बातें बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस और जो है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे बड़े बड़े जो बातें बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोलोसल होक्स. कोलोसल होक्स मींस इट इज ऐसे ही झूठे, नॉट सत्य, असत्य. बिग वे स्कैम बोलते हैं ना, कोलोसल होक्स. इट्स अ बिग स्कैम. और क्यों? क्योंकि वो गॉडलेस है, भगवान सेंटर नहीं है. प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन हाफ फिनिश्ड वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गुड, बिकॉज अगला जीवन मनुष्य जीवन तो मिलेगा. ये जो गॉडलेस लाइफ जिएंगे तो आपको क्या होगा पता नहीं. नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन लाइफ मिलेगा, और मोर चांस मिलेगा आपको परफेक्ट करने के लिए अपना लाइफ को. तो बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर मिसिंग दिस स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी इन ह्यूमन लाइफ. क्यों? क्योंकि मूर्ख है, फुलिश है, एंड they don't have proper understanding of things, defective senses. So प्रभु जी, सॉरी, इसमें क्वेश्चन था प्रभु जी थोड़ा सा. ये मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग वेरी न्यूट्रली, जो ये सेवा करते हैं, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी या जो भी है, मतलब जहाँ फ्लड आया पहुंच जाते हैं. तो मेरा ये समझना था प्रभु जी कि भगवान को सेंटर में रखना, मतलब there can be different ways to keep Bhagwan in the center. Like our Vedic way is different, but they are also like following Jesus command. For example, I mean, I'm just saying Christians, right? अगर वो बिना किसी लेने के भाव से अगर वो सेवा कर रहे हैं, तो भाव तो भगवान तो भावग्राही है प्रभु जी. तो क्या वो गॉड सेंटर्ड सेवा नहीं मानी जाएगी? मगर अगर वो किसी चीज को मतलब रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं, और वो फिर भी एक ह्यूमैनिटी के नाते, क्योंकि उनकी कमांडमेंट बोलती है कि आपको ह्यूमन सेवा करनी चाहिए, उस अगर भाव से सेवा करते हैं, तो इज इट नॉट कंसिडर्ड एज गॉड सेंटर्ड? ये तो ईशोपनिषद में ना, इट इज विद वन कॉन्सेप्ट इट इज बीइंग गिवन, द होल थीम. ओके, में आपने जो बोला उसको एक्सप्लेन किया हुआ है 12th चैप्टर में. भगवान 12th चैप्टर में हमें एनालिसिस करते हैं, ठीक है, शुद्ध भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है. ठीक है, शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट प्रैक्टिस सम भक्ति, रेगुलेटेड भक्ति, साधना भक्ति करो बोलते हैं. साधना भक्ति करने में भी असमर्थ है. ठीक है, वर्क फॉर मी, यू वर्क एंड गिव रिजल्ट्स टू मी, जैसा आप सब लोग कर रहे हैं, साधना भी करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, कृष्णा सेज डू सम गुड वर्क, सेल्फलेस वर्क. भगवान बोलते हैं ये बात, क्योंकि सेल्फलेस वर्क करेंगे, क्योंकि सब लोग स्वार्थ में हैं, एवरीबॉडी सेल्फिश, मैं और मेरा. So at least when you do selfless work, like you just said Red Cross, other things, yes, at least it'll come bring you to the platform of purification of heart. ये मेरा नहीं है, ये कोई है भगवान बोल के, क्लैरिटी नहीं है, बस कोई है. सेल्फलेस काम करेंगे ना, लिखे अक्षय पात्र कर रहे हैं. आई एम श्योर 80-90% of people they are seeing it as a social service. Correct. That is the it's how it's packaged. लोगों को सोशल सर्विस चाहिए, बट इनडायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू कृष्णास कॉज. अक्षय पत्र के साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सोशल सर्विस कर रहा है, उसमें कृष्णा तो सेंटर में नहीं है. सो कृष्णा सेज इन भगवत गीता, ओके, इफ यू कैन नॉट इवन वर्क फॉर मी, एटलीस्ट वर्क फॉर अ गुड कॉज. ही गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन इन भगवत गीता in 12th chapter. Right. So we are not telling it is wrong, but slow process, gradual process. Platform of knowledge में आना है. देखिए, somebody has come to this level of understanding, कृष्णा का सेवा करना है, यानी कि already has surpassed all the things. आप कॉलेज में आ गए हैं तो आपका नर्सरी क्लास हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, पूरा स्कूलिंग हो गया. That's what it means, ना? That's the understanding. So somebody is not even past, his schooling. How he can come to college? That's the point.
ठीक है। हरे तो कृष्णा yes, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, वेलकम। हाँ प्रभु जी, I didn't switch on the video video second आ रहा है। आपका पूरा भाषा कट 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 हो रहा है। वो अच्छा मैं हाँ, तो there वीडियो is ऑफ कर no रहा हूँ प्रभु जी। signal actually here. हाँ, हाँ, वो सिग्नल नहीं है। अच्छा, मैं हाँ वीडियो ऑफ कर रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि क्या है, इससे बैंडविड्थ एक्चुअली ज्यादा इधर लेगा। प्रभु जी बोलिए बोलिए। हाँ एक्चुअली प्रभु आवाज जी आ रही? इधर बिकॉज ऑफ दिस रेन प्रभु जी यहाँ पे वो शायद रेन ना वाला है, ये अच्छा अपना अच्छा। वाईफाई और सेलुलर डेटा दोनों ओ बंद हो रियली, तो जबरदस्त बारिश हो रही गए। है क्या उधर? ज्यादा बारिश हो रहा है? नहीं अभी मुझे वेदर पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम तो वाईफाई ओके, ठीक आप सुन है पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एबल टू हियर मी? हाँ यस प्रभु जी, ठीक है यस ठीक है, आप प्रभु जी, यस सुनिए। प्रभु जी। आप सुनिए सुनिए, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको। ठीक है, आप सुनिए सुनिए, नो ओके प्रॉब्लम। ओके ओके। हमने दूसरा श्लोक का अभी चर्चा किया है। दूसरा श्लोक में ये मंत्र क्या बोल रहा है कि हमें किस तरीके से जीवन चलाना है, और कोई दूसरा अन्यथा मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। अन्यथा करेंगे तो कर्म बंधन में आएंगे। कौन सा मार्ग में चलना है? मंत्र एक में जो बताया गया है, भगवान ही सबका स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। उनका प्रोप्राइटरशिप को समझना है, वो कंट्रोलर है, वो जो एंजॉयर है, ये समझना है। और हमारा जो कोटा भगवान ने दिया उसमें हमें संतुष्ट रहना है। ये प्रिंसिपल में हमें जीवन करना है। यस हाँ, हम इसको भूल के नहीं नहीं हम मालिक है, हम कुछ भी करेंगे, ये हमारा कोटा के अलावा हम वही भी लेंगे वो भी लेंगे, तो ये जगह ऑल प्रॉब्लम ऑफ, पूरा संसार में जो प्रॉब्लम हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। लोग भगवान का जो स्वामित्व का जो है बात भूल गए हैं। तो इस श्लोक में वी लॉस्ट यू प्रभु जी अगेन। आप मुझे सुनते हैं? हाँ हरे हाँ कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। ये प्रभु प्रभु जी लास्ट वाले से इसको रिपीट करने या अभी नया स्टार्ट किया है? नहीं नहीं, वो इस सेकंड चल रहा है। अच्छा लास्ट सेकंड ना, हाँ ठीक ठीक। पहला कर दिया था, दो और तीन उन्होंने हमको पढ़ने के लिए बोला था ना, अभी दो और तीन वापस से रिपीट कर रहे हैं। हाँ सेकंड में प्रभु जी explain कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लास्ट हाँ सेकंड का लास्ट समझ लो पैराग्राफ चल रहा है, सेकंड मंत्र का। ठीक ठीक ठीक। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वाह, हमारा भी प्रॉब्लम शुरू हरे हो कृष्णा प्रभु। गया। हमें भी जो है अभी फोन में Anyway, तो जी अब दीपक जी, अब देखेंगे इधर, तो इस जी श्लोका में तो मंत्रा का जो श्लोका है, मंत्रा जो है इसमें तो भक्ति करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जी इसमें तो किस तरीके से आपको अपने आप का आचरण कैसे होना है बता रहे हैं। जी, बिल्कुल। कर्म बंधन में नहीं आना है। प्रभुपाद जी अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य में बता रहे हैं, परपट में, कि वास्तव में भक्ति करना है, पूरा कर्म बंधन से छुटकारा चाहिए तो भगवत धाम वापस जाना है। हाँ, so Prabhupada is limiting, Prabhupada is commenting that should go beyond this, you know, कर्म विकर्म से ऊपर जाना है और हमें अकर्म करना है, प्रभुपाद जी बोल ये बात है। ठीक है? हाँ जी हाँ, clear। yes, that is the point. ये श्लोका, this is this श्लोका. Again, I'll try to connect in the
Zoom, let's see. तो ये वृंदावन श्लोक में प्रभु जी बाहर है कहीं आप? वृंदावन में है? वृंदावन में कहीं बाहर है? हम वृंदावन में ही है, हमारा भी इंटरनेट आपके आगे पीछे हो रहा है। हाँ, पानीहाटी फेस्टिवल होगा ना प्रभु जी? 180 नहीं हुआ अभी, 8 को होगा। 8 को? अच्छा, उधर पहले 31 का बेंगलोर था। में। हाँ 31 का था, अभी फिर से हमने 8 कर रहे हैं। ओह ठीक। चलिए, so let's begin our, ठीक है, fine. Next verse number 3. जी हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा कुछ क्वेश्चन जो मंत्र 2 आप सुन पा रहे हो प्रभु जी? हाँ सुन पा रहा हूँ, बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ, ये इसमें जो कर्म और अकर्म और विकर्म 3 के बारे में बताया, उसमें जो कर्म और अकर्म बताया, तो जो कर्म है वो भी तो प्रभु जी ऐसा लिखा हुआ है कि जो शास्त्रों में जो उल्लेखित विधियां हैं उसी के अनुसार जो हम नियत अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। तो और जो फिर प्रभु जी जो विकर्म होते हैं तो उसमें और उसमें difference क्या है कि शास्त्र